Ladies and gentlemen, 13th October was an auspicious day of Ekadashi. Durga Bhakts in Bahraich prepared to bid farewell to their Ma, marking the victory of good over evil. But this sacred procession was pierced with the bullet of Nafrat. The flames of communal clashes singed this Durga procession as an auto showroom was razed and even a nearby hospital was not spared the fires of hatred. Watch this man on your screens. This is a 22-year-old Durga Bhakt, Ram Gopal Mishra. He can be seen on the rooftop of a house along the Yatra route. Someone from the street throws a saffron flag to the roof. You can see him go towards the back of this house when a deafening gunshot resonates. Ram Gopal can be seen collapsing to the ground. The chief medical officer later said that 25 to 30 pellets were found inside his body. Watch the moment when he was shot. Now watch this visual of the shooter caught on mobile camera. This man in a white shirt can be seen firing a shotgun and then lowering it. This is the alleged killer of Ram Gopal Mishra. At the time of the murder, Chief Minister Yogi Adityanath had vowed that the guilty will not be spared. Today, news came in of an encounter merely 20 kilometers from the Indo-Nepal border. Two people accused in Ram Gopal Mishra's murder were shot at and injured. The STF claims that Sarfaraz and Talim, along with three other accused, were caught trying to flee from India into Nepal. When they were caught, they opened fire at the police. The police allegedly retaliated, injuring two and capturing 5 of them. Watch this video of the STF with the accused being escorted to the police van after they had been shot. नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। नहीं भागना चाहिए था, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो. All this is heard right here on camera, and clearly, as always in Uttar Pradesh, politics overshadowed the probe even before the facts of the encounter surfaced. The opposition trained their guns at Chief Minister Yogi Adityanath, while Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav called it a half encounter to instill dar. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi said this is Yogi's Thok Denge policy. The UP Sarkar has countered the opposition by saying those who try to kill cops should get goalies, not pool. Watch this political firing. कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है. फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं. ये देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा. योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा. कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी. So the legitimate question we are asking on the news hour tonight, who encountered such for Rajniti? That's the question and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time.
And joining the debate tonight, Shehzad Poonawala, national spokesperson of the BJP, Anand Ranganathan, author, political scientist, as well as a scientist who actually discovers and makes vaccines. Also joining me this evening is Harshvardhan Tripathi, senior journalist. Joining me on the broadcast today is Sanjay Jha, who is suspended from the Congress, but I'm sure the Congress is now really thinking the kind of cover fire he provides is better than any of their own spokespersons. So welcome to the show, Sanjay Jha. Also joining me this evening is AIMIM spokesperson Adil Hassan. But my first question goes to Mohammad Tariq Khan, national spokesperson of the Samajwadi Party. Tariq Khan bhai, Akhilesh Yadav has come out straight from the hip. He's shot and he has said this is a half encounter and this has been done. He can tell the names of people who have been encountered even before he hears about the details. What is he trying to say? Is he saying that Ram Gopal Mishra, who was shot, the guilty should not be brought to book? Is he against justice that is being done in this case? 5 people who have been arrested should not have been arrested. What is the point Akhilesh Yadav is making? आप म्यूट पर हैं. It should be punished. This is simple and clear. But if you frame these type of things that there is an encounter, they have arrested them way before. Means day before yesterday, they have arrested all of it. So this is all the things is framed by the police. It's all right. But nothing, no killing is justified by anybody, no our party, no any other party. But by doing this type of fake encounter, you cannot shed your failure. It's your failure. 5 policemen was there when this person was doing all the thing on the roof. 5 policemen out there. They have done nothing. They have done 0. Point number 1. Point number 2. The person who had fired the gun, he ran away, even though police was there. What was the slogan was there? Mullo bhago Pakistan. Even Mullo is also there. Musalman, but Musalman is also there. He should start from भागिंग इंडिया. पहले यही भाग जाए यहां से, फिर हम लोग इनको फॉलो करें. And this has been allowed even for half an hour. कि मुल्लो भागो पाकिस्तान, मुल्लो भागो पाकिस्तान. So Mukhtar Abbas Naqvi, Shehzad Poonawala, they should start. Like Giriraj Singh is also saying that all the Muslims should leave. Tariq Khan bhai, you are the spokesperson of a national party. Can we speak responsibly here? We are talking about an encounter. You've called it a fake encounter. Please show me evidence that this is a fake encounter, and please show me evidence of what does Mr. Akhilesh Yadav mean when he says अगर encounter से ही law and order ठीक होता तो प्रदेश में सब अच्छा होता. ये सरकार का फेलियर था. एनकाउंटर से डराने के लिए नाम बिना जाने में बता देता ये किसका एनकाउंटर है. अरे जिन्होंने मारा है गिरफ्तार वही होंगे कि कोई और होंगे? It's not a failure. More than 50 houses vandalized. They have looted all the things from their home. It's not the responsibility of the chief minister. It's the responsibility of the chief minister. So you have nothing to say. You have nothing to say in terms of evidence of a fake encounter. So Shehzad Poonawala, what is really the blame game that starts from Akhilesh Yadav even before the details of this shooting and arresting of 5 individuals is concerned? देखिए नाविका, एनकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ अलायंस काम पर आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? इनको यूपी पुलिस और पुलिस पर कब भरोसा रहा है? भाई अखिलेश जी वो है जिन्होंने कहा था मैं मुस्लिम आतंकियों को छोड़ूंगा. हाईकोर्ट ने रोक लगाई जब वो छोड़ने लगे, और वो लोग थे जो कन्विक्ट हुए. ये वो लोग हैं जब सिमी कन्विक्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित किया तो एसपी ने कहा कि सिमी तो मासूमों का झुंड है. ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, डीजीएमओ अनाउंस करता है तो सबूत मांगते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं. ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर जब होता है तो मोहनचंद शर्मा जी को भूलकर वो बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए रोने लग जाते हैं. अब देखिए यूपी एटीएस का एक वर्जन आया है
एसपी बहराइच का वर्जन आया है, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का है। जब भी कोई एनकाउंटर या गोलीबारी होती है तो इसमें प्रोटोकॉल है संविधान के हिसाब से कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रोब होती है और एनएचआरसी, 2 प्रोब होती है, एक नहीं होती है। पर फिर भी कुछ लोग यहाँ पर, केवल अखिलेश जी नहीं, यहाँ पर अजय राय भी जज बन चुके हैं कि नहीं ये फेक एनकाउंटर है, ये एनकाउंटर फेक होते हैं, डराने के लिए होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मायावती जी के जमाने में 261 मौतें हुई 5 वर्षों में एनकाउंटर से, मुलायम जी के जमाने में 499 मौतें हुई एनकाउंटर में, और 7 वर्ष हुए योगी जी को 207 मौतें हुई है। तो मुलायम जी भी डरा रहे थे एनकाउंटर से, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे ज्यादा एनकाउंटर की तो ये जो बातें हैं वो महाराष्ट्र में हुई है। अरे भाई 10 साल की सरकार में वहां पर 600 मर्डर हुए थे, एनकाउंटर हुए थे, मर्डर नहीं एनकाउंटर हुए थे, जिसमें प्रदीप शर्मा, सचिन वजे और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स थे। अभी जो घटना हुई बाबा सिद्दीकी की, उसके बाद संजय राउत का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि, मैं कोट कर रहा हूं, मेरा बयान नहीं है, मर्द हो तो कोट अनकोट एनकाउंटर कर दो इन लोगों का। यह बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद संजय राउत का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पर यहां पर आकर एनकाउंटर पर। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जब पहले दिन ये बहराइच की हिंसा हुई तो हम लोग सब डिबेट में थे, मैं आपके साथ डिबेट में था, तो इन्होंने क्या बोला, जिस बच्चे को, राम मिश्रा को वहां पर 25 छर्रे लगे हैं, उस पे तो एसटी हसन ने बोला कि डीजे का म्यूजिक लाउड क्यों बजा, डीजे पे उकसाने वाला गाना। और यहां पर जब जवाबी फायरिंग में गोली लगती है पैर पर, तो वहां पर कहा जाता है ये फेक है। मतलब पुलिस के प्रति कितना अविश्वास है। और आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए ये एक इकोसिस्टम बन चुका है, केवल सपा को बोलकर कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने एमआईएम और हुबली में जो दंगाई है उनके ऊपर से केस हटाया। अभी उन्होंने मांग की है कि डीजे हल्दी और बीजे हल्दी केसेस में से एमआईएम के दंगाइयों से केस हटाया जाए। अभी गणेश विसर्जन हमला हुआ कर्नाटका में, वहां पर कर्नाटका होम मिनिस्टर बोलते हैं ये एक्सीडेंट हुआ। ताहिर हुसैन, जिसके लिए पूरी मंडली बोल रही थी आज तक उसको बेल नहीं मिली, उन्होंने बोला कि वो मुसलमान है इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। तो दंगाइयों के लिए खड़े हो जाना और एक भी शब्द नहीं बोलना। भाई मैं तो कह रहा हूं सब उदारवाद, संजय झा तो सबसे ज्यादा उदारवादी है ना, सबसे प्रोग्रेसिव। चलिए मान लेते गलत गाना बज रहा था डीजे पे, तो गुस्ताखे गाने की एक ही सजा, गोली से मार दो। मान लीजिए हरा झंडा उतारा उसने, तो गुस्ताखे हरे झंडे की एक ही सजा, गोली मार दो। मुस्लिम इलाके से हिंदू यात्रा चली गई तो तेलंगाना से लेकर बंगाल तक आप पथराव कर देंगे। मानसिकता पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, इस मानसिकता पर सब लोग कुंडी लगाकर चुप बैठे हैं, पुलिस के मनोबल पर चोट करनी। वेल, आई वांट टू आस्क आदिल हसन। आदिल हसन साहब, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ठोक देंगे नीति है ये, न्याय की नीति नहीं लग रही आपको? अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, अब इस केस में एनकाउंटर हुआ है तो चोट लगी है, किसी कोई हताहत नहीं हुआ और 5 लोग जो बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे उनको पकड़ा गया। आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं, और जो शहजाद पूनावाला जी ने सवाल उठाया कि अगर मान लीजिए किसी ने हरा झंडा उठाया, छुआ, कुछ किया, तो क्या गोली से ठोक दिया जाएगा? वो ठोक देंगे उनके लिए कहा जा रहा है जो आरोपी हैं, जिसे ठोक दिया, जिसकी जान चली गई, उसके लिए एक आंसू भी नहीं है आपके पास? मैम, सबसे पहले बोलना चाहते हैं कि इस देश में चीफ जस्टिस रिटायर कर रहे हैं, उसके जगह पे चीफ सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को बोल देते हैं कि आप ही ठोक दे पॉलिसी कीजिए, आप ही जज बन जाइए, आप ही पुलिस बन जाइए, आप ही वकील बन जाइए, आप ही न्याय की कुर्सी पे बैठ जाइए। इस देश में कानून है कि नहीं? देश में एनएचआरसी है कि नहीं? देश में कोई नियम कानून है कि नहीं? देश संविधान से चलेगा कि योगी आदित्यनाथ जी के माइंड सेटअप से चलेगा? जब उसने गिरफ्तारी दी, जब बाजाप्ते गिरफ्तार हुआ है, जो एसपी और डीएम जिसके चलते, जिसके पूरा आईजी इंटेलिजेंस का फेलियर, एडीजी हेडक्वार्टर का फेलियर, आपने पूरे दंगा को कंट्रोल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 45 मिनट के अंदर अगर डीएम एसपी चाले तो कोई दंगा नहीं हो सकता है। ये देश का सबसे बड़ा अदालत कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का। डीएमएसपी ने क्यों नहीं इंटेलिजेंस आउटपुट लिया? आपने क्यों ऐसा डीजे बजाने दिया? और जितना मस्जिद है, जितना मुस्लिम इदारे हैं, उसी के सामने जिन्नात निकल जाता है क्या, जो एक से एक अभद्र गाना निकालते हैं? योगी आदित्यनाथ बतलाएं कि 20,000 लोगों पर उन्होंने केस वापस लिया। कानपुर में मदरसा का मुहर्रम के जुलूस में 32 लोग का नाम था, उसमें दंगा कराने में, उसमें उसका नाम, केस वापस में योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ा। कर्नाटका में आपके खिलाफ के केसेस भी तो वापस हुए, तब दर्द नहीं हुआ, वापस ले ले, तब दर्द नहीं हुआ कि केस कर्नाटक में आपके खिलाफ वापस हुआ। शहजाद को आपने सुनिए, नविका जी,
मैडम नविका जी, शहजाद को आपने बोलने दिया था, मुझे भी बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, पर मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। मुझे डराइए धमकाइए मत, मैं सवाल ही पूछ रही हूँ। मेरे पास एक ही हथियार है, वो है मेरे सवाल। भाई आपको कौन डराएगा? तो सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। भाई नरेंद्र मोदी आपके घर में शादी में आते हैं, आपको कौन डराएगा? तो नरेंद्र मोदी आपके घर में शादी में आते हैं, कौन डराएगा मैडम? ओवैसी जी को भी बुलाया था, नहीं आए। आपसे तो दुनिया डरती है मैडम। नहीं, तो ये कौन सी बात हुई? जिसका न्यूज चला दीजिएगा वही हीरो, जिसका आप मुद्दे पर बात करेंगे। आपके पास मुद्दे पर कोई जवाब है या नहीं है? मेरे पास 1000 मुद्दा है, मेरे पास 1000 मुद्दा है। मैं चैलेंज करता हूं, आप डिस्कस कीजिए, मैं 1000 मुद्दा आपके सामने। तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, 3 साल की मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। एनकाउंटर हुआ, आदिल हसन साहब, आवाज ऊंची करने से इंसान ऊंचा नहीं हो जाता। पैसा दिया गया, आवाज ऊंची करने से इंसान ऊंचा नहीं हो जाता। मैं बड़ी अदब और बहुत रिस्पेक्ट से आपसे पूछ रही हूं कि कर्नाटक में आपकी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी केस वापस हुए हैं, उसका भी तो जवाब दे दीजिए। हाँ, सुनिए, 138 आदमी था, उसमें एक आरिफ है, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी चित्यानंद जो होम मिनिस्टर रहे हैं, उसका केस वापस का प्रोसेस योगी आदित्यनाथ ने किया है, अपना उसने किया है, 20,000 लोगों पर किया है। और पूछिए योगी सरकार से, हमारे नबी के शान में जिसने गुस्ताखी की, यति नरसिंगा पर क्या कार्रवाई हुई? शलम मणि त्रिपाठी ने जवाब दीजिए शहजाद भाई। पत्रकारों का नाम दिया, मुझे उम्मीद है कि आदिल भाई अब पूरा बयान और पूरा जवाब सुनेंगे। आदिल भाई आपने अपनी बात रखी। आदिल भाई आपने नहीं, अब आपने जवाब मांगा है तो जवाब सुन लीजिए। देखिए आदिल जी ने, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल ने फर्जी न्यूज चलाया मेडिकल रिपोर्ट पर। सर आदिल जी, हो गया आपका कि अभी कुछ भरा पड़ा है, कुछ बाकी है, कुछ और भी आप सपोर्ट करते हैं, कुछ और भी जुबानी पत्थर है जो का सपोर्ट करते हैं। वो गलत डीजे चले तो गोली मारे, कवर फायर आप दें और भड़काने का काम हम करते हैं। कमाल है आदिल हसन। फेडर डाउन, जवाब दीजिए। देखिए अभी इन्होंने कहा कि ऐसा डीजे पर म्यूजिक बजाया जा रहा था, मतलब ये एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। तो फिर कोई अगर ये कहे कि गुजरात दंगों से पहले क्या हुआ था, 58 कार सेवक निर्ममता से जलाए गए थे ना, तो वहां पर भी एक्शन रिएक्शन मानोगे ना आप? हिंदुओं की यात्रा पर पत्थर बिना कोई उकसाए बरसाए जाते हैं ना, तो उसकी प्रतिक्रिया फिर जो होगी, फिर आप उसको स्वीकार रहे हो ना कि केवल यहां पर कि एक झंडा उतारा गया या एक डीजे पे म्यूजिक चलाया गया, इसीलिए मैं गोली चलाने का अधिकार रखता हूं। यह अगर क्रिया प्रतिक्रिया है तो क्रिया प्रतिक्रिया का लॉजिक और एक्सप्लेनेशन दूसरी तरह से भी आ सकता है। दूसरी बात सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, नाविका जी के घर के शादी में मोदी जी आते हैं, आपके यहाँ तो यूएस एम्बेसडर आ गए भाई, यूएस के टॉप डिप्लोमेट्स जो कि यूएस प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, वो आए थे ओवैसी साहब के पास। तो आप तो डरे हुए हो ही नहीं सकते भाई, आप तो डरे हुए हो ही नहीं सकते। सुन लीजिए, माफ कीजिएगा, आप डरे हुए हो ही नहीं सकते। अब मैं एक ही सवाल आखिरी पूछना चाहता हूँ, बीच में ये मुद्दा, ये यहाँ पर मुद्दा मेरी पर्सनल लाइफ का नहीं चल रहा है, ये मुद्दा देश का चल रहा है और हम इस पर रहें तो बेहतर रहेगा। मैं आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने एनकाउंटर पे एक लंबी स्पीच दी कि एनकाउंटर गलत है, ये है, वो है। ये एमवीए में भी जाना चाहते हैं, लेटर लिखा है एमवीए के लिए। इसी एमवीए के सदस्य ने कहा कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारे को मर्द हो तो एनकाउंटर करके मार दो। तो बोलो कि आप सही मानते हो गलत मानते हो, बोलिए। एमवीए के ऑफिशियल मांग है एनकाउंटर करो। तुम अगर तुम मर्द हो तो बतलाओ कि होम मिनिस्ट्री में मैं मर्द हूं या नहीं हूं वो छोड़ दो, मर्द देखना नहीं, मर्दानगी तो आदिल हसन जी, मर्द क्या है भाई? नहीं आदिल हसन जी, इस तरह की ऐसी मानसिकता और ऐसी बातें अगर नेशनल टेलीविजन पर ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपका जो लहजा है बात करने का, मुझे लगता है इसे कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। और मैं इस तरह के लहजे वालों को अपने शो पर तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूं। ये कोई लहजा है? आप मर्द हैं, आप औरत हैं, तो हम आपको यहां बैठकर सफाई देंगे कि हम मर्द हैं तो ये करेंगे, औरत है तो ये करेंगे। आप होते कौन है हमसे जवाब मांगने वाले? तरीका क्या है
है आपका बात करने का। पहले आप बात करना सीखिए, पहले आप अपनी जबान ठीक कीजिए, अपना बात करने का तरीका ठीक कीजिए, फिर बात। हाँ, आपसे डरने वाले नहीं है। मैं बिल्कुल बोलूंगी, ये मेरा शो है, मेरे शो का स्टैंडर्ड मैं मेंटेन करूंगी। अगर आपका स्टैंडर्ड सही नहीं होगा तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी, क्योंकि ये यहाँ पर खुला खेल फरुखाबादी नहीं चलेगा। मैं ये डिसाइड करूंगी और मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं। पहले तमीज से पेश आइए, तमीज के बाद बात हो सकती है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये किस तरह की बातें, ये किस तरह का लहजा है, ये किस तरह का इस तरह से शो पर, नेशनल टेलीविजन के शो पर बैठकर डराने धमकाने का काम है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं, जो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है, अगर किसी ने गोली चलाई, उसको गिरफ्तार किया गया, इसको अगर फेक करार दिया जा रहा है, फेक एनकाउंटर, तो क्या इसके तथ्य सामने हैं या नहीं? और अगर एक लड़का, अगर उसने गलत भी किया, हरे झंडे को हाथ लगाया, गलत डीजे बजाया, तो क्या उसे गोली से ठोक दिया जाएगा इस देश में? इस देश में कानून, संविधान है या नहीं? नविका जी, पहली बार देश में एक हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है, और इस देश का फ्रॉड सेकुलर गिरोह वो चुप्पी साध कर बैठ जाता है, बिल्कुल नहीं कहता कि हत्यारों को पकड़ा जाए, हत्यारों को न पकड़ना योगी सरकार की विफलता है। वो कहते हैं कि चूंकि उसकी हत्या हो गई, ये योगी सरकार की विफलता है। जिसने हत्या की उसको पकड़ा जाना नहीं। इसी से आप समझिए कि इनका दोहरा चरित्र कैसे सामने आता है। और ओवैसी साहब तो कमाल ही करते हैं, पता नहीं, वो तो बैरिस्टर है, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हालांकि जिस तरह से जेपीसी की मीटिंग वक्त पर छोड़कर भाग रहे हैं, मुझे थोड़ा उस पर भी अब संदेह होने लगा है। मुझे लगता है तकरीर ही अच्छी करते हैं वो, आंख बंद करके ऊपर मुंह करके, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब सोचिए आप, जिस एनकाउंटर में पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, ये हर कोई जानता है, अब तक तो सारे तथ्य आ गए, लेकिन ओवैसी जी जल्दबाजी कर गए। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। अभी उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, तो क्या बंद कर दो? ये जो दोनों जिनके पैर में गोली लगी है, हत्यारोपी जो है, और जो उसके साथ 3 लोग हैं, यानी कुल मिलाकर 5 लोग, इन सब को न्यायालय ही ले जाया जाएगा। पुलिस बाकायदा उनको डॉक्टर के पास ले गई, इलाज कराया, और आपने उनका वो वीडियो दिखाया। अब उस पर सवाल खड़ा हो सकता है कि पुलिस के सामने वो बोल रहे थे, डरकर बोल रहे थे, लेकिन ये आप इसको त्वरित न्याय के तौर पर देखें। आप इसको देखें कि पुलिस की जो कमी थी वो उन्होंने तेजी में, 13 तारीख का घटनाक्रम है, 17 तारीख तक सारे हत्यारोपी पकड़े गए हैं। अब एक पार्ट पर आप योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, वो ये कि क्यों पहले नहीं रोका। लेकिन अगर हो गया तो दूसरा पार्ट तो योगी सरकार ने दुरुस्त किया कि जो हत्यारोपी हैं उनको पकड़ा, अब उनको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन वो वाला सवाल तो अभी भी छूट रहा है, क्यों दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, क्यों गणेश विसर्जन, क्यों रामनवमी, क्यों दशहरा, क्यों होली, क्यों ऐसे सारे हिंदू त्योहारों पर कोट अनकोट कोई मुस्लिम एरिया हो जाता है, कहीं से पत्थर चलने लगता है, कहीं पर दंगा होने लगता है, और वहां पर सब कुछ उपलब्ध भी रहता है, ईंट, पत्थर, गोली, बंदूक, सब कुछ उपलब्ध रहता है। इस सवाल का जवाब खोजना चाहिए। अगर इस सवाल का जवाब नहीं खोजा जाएगा तो कोई तो मॉडल होना चाहिए जो इस सवाल का जवाब दे। हम आप टीवी पर चाहे जो बहस करें, लेकिन जनता को लगता है कि योगी मॉडल वो जवाब दे रहा है। आदिल हसन साहब, आप हाथ उठा रहे हैं, मैं बहुत अदब से कह रही हूं कि मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आऊंगी तब जब लहजा ठीक होगा और आपकी बोली नेशनल टेलीविजन के लिए सही होगी। मैं जरूर आपके पास आऊंगी, मुझे आपसे कोई पर्सनल रंज नहीं है, लेकिन इस शो का, आप मुझे सुन लीजिए, इस शो का एक स्टैंडर्ड है और इस शो के स्टैंडर्ड के मुताबिक बात कीजिए और आपकी भाषा उस मर्यादा में रहेगी तो मैं आपको सुनूंगी और देश की जनता आपको सुनेगी। बोलिए, आपका क्या काउंटर है? जी 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 मैम, मेरा ये काउंटर है, जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जब डीएम, एसपी, आईजी, इंटेलिजेंस, डीजीपी को ये निर्देश है कि आप पूरा रूट को वीडियोग्राफी कराइए, इंटेलिजेंस का इनपुट है, जो डीएम, एसपी और मोहतरमा जो दोनों हैं, इस बात का श्योरिटी होना था कि पुलिस पर्याप्त मात्रा में रहे। आज एक दिन दंगा हो जाता है, दूसरे दिन कैसे फिर दंगा हो जाता है?
चलिए, कि आपका paramilitary सवाल force इतनी जो force आपका है, वो सवाल क्यों सही यहाँ पर इस है, चीज को आपका वो सवाल शाम में बिल्कुल 5,000 वाजिब लोगों को है, लाठी लेके क्यों अलाउ किया गया? बिल्कुल वाजिब सवाल है, जवाब शहजाद देंगे। intelligence failure नहीं है, बिल्कुल इसको बात वाजिब किया कि सवाल है, मौत क्यों? जवाब सुन लीजिए, रुक जाइए, जवाब। मैं तो कह रहा हूं कि इस सवाल में थोड़ी सी ईमानदारी है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। चाहे तेलंगाना में, हैदराबाद में अगर किसी पर हमला हो हिंदू यात्रा पर, चाहे बंगाल में रामनवमी की यात्रा पर हो, चाहे कर्नाटका में गणेश विसर्जन पर हो, पर सिलेक्टिवली एक ही जगह पर एक सवाल ही उठा है। और दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सवाल तो ये भी उठाया जाएगा ना कि चलिए मान लीजिए कि रूट पर इन्होंने चेकिंग नहीं की, पर रूट पर ये यात्रा जाएगी तब उसके लिए डीजे पे म्यूजिक बजेगा तो मैं पिस्तौल रखूंगा, मैं छतों पर पत्थर रखूंगा और मेरे सामने से कोई यात्रा जाएगी या कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड स्टेटस आ जाएगा या कहीं पर कोई चित्र बना दिया जाएगा, यहां पर कोई गाना बजेगा, तो इस गुस्ताख के गाने की एक ही सजा कि मैं गोली मार दूंगा। इस प्रवृत्ति के बारे में क्या बोलेंगे? क्या यह प्रवृत्ति ठीक है? चलिए मान लीजिए गलत गाना बजा, मान लीजिए कि इस लड़के ने गलत गाना बजाया, मान लीजिए कि झंडा भी उतारा, इसकी तरीका क्या है? संविधान के तहत जाकर शिकायत करना, रिकॉर्ड करना और पुलिस प्रशासन को एक्सपोज करना। हम गोली चलाएंगे और फिर जब जवाबी कार्रवाई होगी तब हम मुटकार खेलेंगे। That is the question, Sanjay Jha. And Sanjay Jha, I want to ask you this question. Asaduddin Owaisi says, "Thok denge." This is the kind of law and order that is going on in Uttar Pradesh. अरे ठोक तो राम गोपाल मिश्रा को दिया ना किसी ने, उसकी बात कोई नहीं करेगा। And if 5 people are arrested, they are arrested for a crime of killing a man. And the man's family, if you've heard it, we've shown it on Times Now in the past, how his mother says that his nails were taken out. He must have got riled up. I don't know what were the circumstances. The evidence will come up in the investigation. But is justice going to be done by killing that man? And thok de come only on the issue of arrest and encounter during arrest? Isn't that a bit lopsided? And when Mr. Akhilesh Yadav says that government is working to divide and rule, balance करने का काम कर रहे हैं, ये कौन सा बैलेंस है? ये कौन सा बैलेंस है कि एक मारा तो यहां भी मरेगा? ये बैलेंस हो रहा है क्या? इस देश के लोग क्या सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है? Navika, I think the panelists can differ on many aspects, but I think everyone has to collectively agree that law and order has collapsed in Uttar Pradesh. Many of the BJP supporters may feel that is the biggest achievement of the government, but for the viewers of the program, they can see what is going on in Uttar Pradesh. And I'll give you an example. The model that I think Mr. Tripathi mentioned, the Yogi model, let me remind him that the Supreme Court's words on the bulldozer on which Mr. Adityanath and the BJP campaigned in the UP are a reminder that any political party trying to be anti-democratic and anti-constitutional will be shown the way, not just by the Supreme Court, but as the Lok Sabha results showed, Navika, even the people are aware of the truth behind what is going on in Uttar Pradesh. My question to my friend Mr. Poonawalla will be, if you cannot even protect the life of a wise security level former minister who belongs to a party which is an alliance with you in government, who is killed in broad daylight in Mumbai, I can tell you nobody in this country is safe under the BJP government in the center, under a BJP government in the state. Look at one data, Navika, and it's disturbing. 13,000 or over 12,000 encounters have happened in Uttar Pradesh over the last 7 years. When a gangster, he may have been a gangster, I'm not going to deny that. What is surprising is that the Mulayam Singh Yadav government's track record doesn't disturb you. 499 encounter deaths and 207 under Yogi Adityanath, that doesn't disturb you. What doesn't disturb you is Allahabad High Court's observation and order which said you can't release terrorists, kal aap inko Padma Shri bhi de denge. That doesn't disturb you. This selective disturbance is what disturbs me, Sanjay Jha. But now, Navika, since you are part of mainstream media, let me ask you, when did we last see, which we saw in Uttar Pradesh a year and a half ago, a gangster arrested by the UP police
gets shot on live television. And I have read tweets by BJP leaders celebrating that as a great act of atonement. I mean, that is a collapse of basic respect for a constitutional democracy. Respond, Shahzad. Look, first of all, Sanjay Jha, Mr. Baba Siddiqui did not have Y category security, so that is where the fake news starts from. It has been clarified. What He had security did he One have? second. Now you give me the paper that he had Y category security. You made the accusation and the claim. Otherwise, I am ready to prove my claim. You can prove your claim. Now don't interrupt, Sanjay. I did not interrupt you. Secondly, if encounters are a measure of failure in law and order, then let me tell you. Sachin Vaze 60 encounters, Pradeep Sharma 312, Praful Bhosle 70, Vijay Salaskar 80, Ravindra Angre 54. These were the number of encounters that took place between 4 to 14. And they were celebrating these cops. Sachin Vaze, when he was planting bombs under an industrialist's house, Uddhav Thackeray defended him in assembly saying he's not Osama bin Laden. Thirdly, Mr. Sanjay Jha, law and order has collapsed. When was the last time UP was called Behal by Congress party, you know? It was prior to your 2017 alliance when Akhilesh was in power. After that, you have never used this term. You know why? 700 riots. Faizabad riot, Ghaziabad riot, Bareilly riot, Pratapgarh riot, Muzaffarnagar riot, Moradabad riot, Saharanpur riot. All of these are riots that took place under Samajwadi Party's watch, under your watch. Hashimpura, Bhagalpur, Meerut, Malyana, Nelli, Delhi, Jalgaon, Mumbai, Ahmedabad. All of these riots under your watch. 70% drop in dacoity today, 29% drop in murders, 69% drop in looting, 52% drop in rapes, 71% is the conviction rate in women crime. It is the highest in any part, but law and order is bad now. But it was Sundar Sangeet when Muzaffarnagar riots were happening. Only somebody suspended in more than status, which means logic, can say this. Navika, a short point. The nervousness of the BJP is मैं palpable. nervous- हरियाणा के दिन पे भी nervous लग रहा personal था। comments at me. I will not even bother to dignify incongruous stupidities by responding But to I it. know- I can okay, be all extremely right. nasty, but I won't be. The by-elections are worrying the BJP. They know how they fared in the Lok Sabha. Well, The they How get many worried. seats are they contesting? How they- many seats is Congress contesting? No, they How get many worried seats is about Congress every contesting? elections. The good thing is the Congress doesn't worry about any election, which is why a election under their belt also has been lost by them. But Anand Ranganathan, I don't want to hit below the belt, but you know, respond to all the charges that are being made. My only question, who's balancing what? Why are people calling it fake already without investigation? And why is nobody shedding a tear for Ram Gopal Mishra? Why is everybody out only to protect those who are accused of his murder? Good evening, Navika. I've been waiting very patiently for 31 minutes. I hope I'll get a couple of minutes of uninterrupted time because it's a very important discussion and all the panelists have made very valuable interventions. But as time has passed by in this debate, what I intended to speak on, I have, with your permission, I've had to add a few other rejoinders because they're very important. The first one is, Navika, that the killers of Ram Gopal, I'm afraid, were not very well informed, because they tried to escape in the other direction, the wrong direction. Had they escaped down to Karnataka, they might still have survived. The police not catch them, because if you remember, the Hubli incident where a riotous mob ran over a police station, injured 12 cops seriously, burned vehicles, attacked a temple, and an MIM legislator was in charge of that, leading that, the government withdrew the case. So only these killers had known what is going on around our country, they might still have escaped the clutches of the... Number two, as far as the AIMIM legislator and the spokesperson is concerned, and you kind of warned him of, egregious language, let me show this. This is par for the course, because MIM legislators were threatening to behead Tasman Nasreen. 3 of them were arrested. If you were to read the quote of Akbaruddin Owaisi, he said, "We are proud of this." So this incident. Number two, let me remind the समाजवादी, वही कह रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम निकलता गया रिजॉइंडर्स आते जा रहे हैं. ये फेक एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं. शहजाद ने बहुत अच्छे डेटा दिया, पूरा प्रॉपर डेटा दिया. समाजवादी पार्टी के रूल में भी एनकाउंटर्स हुए थे, लेकिन ये ग्राफ देखिए आप, यही प्रॉब्लम है ना, ये पढ़ के नहीं आते. यूपी अंडर अखिलेश यादव रूल गेव मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट फॉर फेक एनकाउंटर्स. इसके बारे में एकदम चुप रहेंगे. सारी सिलेक्टिविटी मतलब बीजेपी के माथे ही थोप दी. मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के रूल में गलत हो रहा है गलत,
लेकिन बाकी सबके उसमें क्या दूध के दूल्हे थे। नंबर 2, ये जो प्रोवोकेशन थ्योरी है सबसे डेंजरस है। हर्षवर्धन ने एकदम ठीक कहा, ये जितने डीजे बजते हैं ये हिंदूज भी बजाते हैं प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स कोट एंड कोट, और मुस्लिम्स भी बजाते हैं। मैंने 2-3 एग्जांपल पिछली बार आपके डिबेट में लिए थे। दीन के गद्दार गुलाम अली को इतने सारे तलवार लेके ब्रांडिश करके मंदिर के आगे रुक के बजाते हैं, तब प्रोवोकेटिव नहीं होता। So let's not be selective out here. This is an occurrence all around the. I did not interrupt you. नेशनल चैनल पे आप झूठ बोल रहे हैं। नाविका गलत बात। एक भी वीडियो आप नहीं दिखा सकते हैं जो जबरदस्ती। आपको मैं बहुत सारे वीडियो भिजवा दूंगी आदिल हसन साहब। नेशनल टेलीविजन पर दिखाने लायक हर वीडियो नहीं होता है, पर भिजवा दूंगी आपको। आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठें, बिल्कुल इत्मीनान से बैठे। सरतन से जुदा के जितने वीडियोस हैं वो आपको मैं भिजवा दूंगी, मेरी टीम आपको भिजवा देगी। लेकिन आनंद, कंप्लीट योर पॉइंट। हाँ, लेट्स मी कंप्लीट। और जैसे कि ये सरतन से जुदा की बात कर रहे थे, ये अपने लीडर मिस्टर ओवैसी की स्टेटमेंट सुन लीजिए कमलेश तिवारी के प्रति, जो कि 1-2 महीने बाद उनकी स्टेटमेंट आई और उनका गला रेत दिया गया। सो लेट्स नॉट गो दैट साइड। द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, एज यू राइटली पुट इट, नाविका, Ram Gopal was dragged inside the house. His throat was slashed with a knife. He was held, pinned to the ground. Pliers were used to dig out and pull out his fingernails. Then he was shot, and after he was dead, he was stoned. And now people are crying over why some killers who were trying to escape were shot. As Harshvardhan ji said, you are looking at it completely the other way around. It is a shame on this country. My friend, I don't think that in this country justice has to be done by the gun. I'm certainly not a proponent of that. Nobody is saying that encounters are a good way to go. But if you're looking at statistics, please look at the entire statistics. If you're looking at facts, please look at the entire facts. And if you're making a charge that this is a fake encounter, please bring out the evidence and the facts, because the courts are open. They're still not shut for Diwali. Any case which comes out which has evidence of a fake encounter can go to court. And in 2020, such cases have gone to the courts, and the Supreme Court has given a clean chit to the Uttar Pradesh government. Having said that, my question tonight is just the preposterous charge. People saying ये balancing के लिए करा जा रहा है। अरे भाई, राम गोपाल मिश्रा मर गया। एनकाउंटर में 5 लोग गिरफ्तार हुए। Is it anybody's case that justice should not be delivered? The killers should roam free? Or is it somebody's case that yes, even if there was a provocation, there is a law of the land? File an FIR, demand action, but killing someone, is that justified? And then to save the perpetrators of that murder, is that fair? That's the question people of India are asking tonight. We leave it at that. Thank you very much to all my panelists for joining me on debate number 1.